এনডিএৰ বৈঠকৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দেশবাসীক সম্বোধন ভাৰতবাসীক সেৱা কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ বাবে পৰম সৌভাগ্য ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পুনৰবাৰ জনাইছো কংগ্ৰেছৰ গ্ৰোথ ৰেট আৰু এনডিএৰ গ্ৰোথ ৰেটৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে ভাষণ প্ৰসংগতেই কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগতে তেওঁ প্ৰথমে ভাষণৰ আৰম্ভণিতে জনালে যে দেশবাসীক সেৱা কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ বাবে পৰম সৌভাগ্য সমান্তৰালভাৱে জনসাধাৰণে কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসঘাতকতা দেখিলে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে 2014 চনৰ পিছত দেশত উন্নয়নৰ এক নতুন গতি আৰম্ভ হৈছিল এনডিএ চৰকাৰ অহাৰ পিছত দেশৰ ভাগ্য উদয় হ'ল মই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে গৌৰৱান্বিত দেশবাসীয়ে আমাৰ নীতি নিৰ্ণয় আৰু উদ্দেশ্য লক্ষ্য কৰিছিল ভাৰতে আজি বৃহৎ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিছে বিগত 12 বছৰত দেশৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত হৈছে বিকশিত ভাৰতৰ সপোন প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰে সংকল্প আমি নতুন চিন্তাৰে নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো দেশৰ সকলো বৰ্গৰ উন্নয়নে আমাৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছে দেশক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল আমাৰ বাবে দলতকৈ প্ৰথম দেশ কংগ্ৰেছৰ দিনত এটাৰ পিছত আন এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল আমি কাশ্মীৰৰ পৰা 370 আমি জনাইছো যে আমি কাশ্মীৰৰ পৰা 370 আঁতৰ কৰিছিলো আজি দেশৰ বিকাশৰ হাৰ 7.7% মধ্যবিত্তৰ উন্নতিৰ বাবে চৰকাৰে কাম কৰি আহিছে আমি নক্সালবাদ নাইকিয়া কৰিছো 2004 পৰা 2014 লৈ ভাৰতৰ বিকাশ স্থবিৰ হৈ পৰিছিল 2014ত দেশৰ ভাগ্য পুনৰ সলনি হ'ল 2047 লক্ষ্য উপনীত হ'বলৈ আমি গতি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব বুলিও ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আমি শুনাব বিচাৰিছো মোদীৰ ভাষণৰ কিয় অংশ 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं साथियों साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है इस आशा का इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था मुझे आज संतोष है गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है 2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं हमारी दिशा सही है ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे और मैं मानता हूं कल जो गरीब था
आज जो न्यू मिडिल क्लास बना है उसे अब हमें पीछे नहीं होने देना है। इसलिए सरकार के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हमें दिन रात काम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है और इस संकल्प के साथ कि 140 करोड़ का ये देश हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठा है वो जरूर पूरी हो। 2014 আৰু এয়া আছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ প্ৰসংগত কৰা মন্তব্য। তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপিৰ গ্ৰোথ ৰেট আৰু কংগ্ৰেছৰ গ্ৰোথ ৰেটৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। তেওঁ সমান উল্লেখ কৰিছে যে দেশবাসীয়ে কংগ্ৰেছৰ যি বিশ্বাসঘাতকতা সেয়া আখৰে আখৰে প্ৰমাণ কৰিলে বা দেখিলে বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সমান্তৰালভাৱে 2014 চনত এক প্ৰকাৰৰ দেশে এক নতুন গতি লৈছিল। 14 চনৰ পিছত এটা দশকৰ কাম এটা মাহতে হ'বলৈ ধৰিলে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে 2047 চনৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ ক'লে যে বিজেপিৰ এই যি গতি, এই গতি অধিক ত্বৰান্বিত কৰিব লাগিব। সমান্তৰালভাৱে ভাষণ প্ৰসংগতে তেওঁৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ। ভাৰত এতিয়া বিদেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, ভাৰতীয়ই মেড ইন ইণ্ডিয়া বিমানত যাত্ৰা কৰিব, সম্ভাৱনাগামী সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব। ভাৰতে ৰিফৰ্ম এক্সপ্ৰেছত যাত্ৰা কৰিছে, ছেমি কণ্ডাক্টৰ ছেক্টৰত ভাৰতে তীব্ৰ গতিত কাম কৰিছে, ভাৰতত নিৰ্মাণ হ'ব মেড ইন ইণ্ডিয়া চিপছ। এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ কিয় অংশ। 15-16 के कालखंड में जो बात नींव डाली गई उसके फल अब दिखाई देने लगे हैं। भारत तेजी से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। साथियों, एनर्जी, मिनरल्स, चीप, बैटरी स्टोरेज, स्पेस, ड्रोन, डेटा सेंटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे हर सेक्टर, हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे की पूरक है। भारत इनके लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता क्योंकि ये भारत की आर्थिक और स्ट्रेटेजिक हर प्रकार की सिक्योरिटी से जुड़े विषय है। और तभी भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर इतना फोकस कर रहा है, तभी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर मिशन बोर्ड पर काम चल रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भरता के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे और कंटेनर भी मेड इन इंडिया होंगे। शिप मेंटेनेंस और रिपेयर से लेकर स्क्रैपिंग तक की सर्विसेज भी भारत देगा। यही विजन हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। 2014-15-16 के कालखंड में जो बात প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য তেওঁ ইতিমধ্যে ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে। কেৱল এটা স্তৰৰ জনতাই নহয়, সকলো স্তৰৰ জনতাৰ বাবে ইতিমধ্যে এনডিএ বা বিজেপিয়ে কাম কৰিছে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে। সমান্তৰালভাৱে 2014 চনৰ পিছৰ পৰা এক নতুন গতি লৈছে দেশবাসীয়ে বা দেশখনে এক নতুন গতি লৈছে। তেওঁলোকে আমি জনাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ দিনত এটাৰ পিছত আন এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল, কিন্তু সেইসমূহ বিজেপিৰ দিনত কিছু এক প্ৰকাৰৰ আংশিকভাৱে হ'লেও আঁতৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মোদীয়ে। সমান্তৰালভাৱে মধ্যবিত্তৰ উন্নতিৰ বাবে চৰকাৰে কাম কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। নক্সালবাদ নাইকিয়া কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। 2004 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ ভাৰতৰ বিকাশৰ গতি স্থবিৰ হৈ পৰিছিল, পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে 2014 চনত। দেশৰ ভাগ্য পুনৰ সলনি হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে 2047ৰ কথা। 2047লৈ চৰকাৰখনে কেনেধৰণৰ লক্ষ্য হাতত বান্ধি লৈছে আৰু 2047ৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কেনেধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব লাগিব, তেওঁলোকৰ যি গতি সেই গতি অধিক বৃদ্ধি বা ত্বৰান্বিত কৰিব লাগিব বুলি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গ্লোবেল গ্ৰোথত ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধি পাইছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। পূৰ্বতে ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল। এইবাৰ আমি জনাইছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ দিনত
ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিসমূহত এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকেৰে সকলোবোৰ ধ্বংস কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত। 2047ত তেওঁলোকে লোৱা লক্ষ্য বা কেনেধৰণে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব, এই প্ৰসংগত ভাষণত কি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% था, आज यह 20% तक पहुंच चुकी है। 2014 में देश की एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी। आज देश में बन रही 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट्स भारत को आधुनिकता की तरफ ले जा रही है। साथियों, हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया, नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। साथियों, हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाया, आदिवासियों के लिए जनमन जैसी योजनाएं शुरू की। पशुपालकों और मछुआरों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी सुविधा से जोड़ा। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। साथियों, सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ। डीप टेक और एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे युवा नया दमखम दिखाने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आने वाले समय में 2 और सेक्टर्स में भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया देखेगी। ये सेक्टर है टूरिज्म और स्पोर्ट्स। ये दोनों भारत की इकोनॉमी के मजबूत पिलर बनेंगे। विशेष रूप से कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और कॉन्सर्ट के मामले में भारत एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनने के लिए अब पूरी तरह सज रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सेक्टर को बहुत पुश मिलेगा और स्पोर्ट्स में तो भारत के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन उनकी परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये खाती और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है। और देश भी निरंतर रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहा है। साथियों, देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया है। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शन में दुनिया में सब